All right, good morning, everyone. Yeah, hi Harsh, good morning. Good morning, Aditya. Hi Ishan, hi Sayam. Good morning, Precious. Good morning, Mahima. Hi Sarvesh. All right, so I hope आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो मैंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था वो एक बार देखा होगा बिफोर कमिंग टू टुडेज क्लास. So I'll take a quick recap of that as well because I'm sure कि एकदम से कनेक्ट नहीं बैठेगा. So I'll take you through what we discussed in the last class. Acha. Also, from the homework perspective, I think सेकेंड लॉ का तो मैंने कोई होमवर्क दिया नहीं ना अभी तक आपको. सेकेंड लॉ का होमवर्क मैं आज दे दूंगा. सेकेंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारा बस अभी एक पिछला होमवर्क का डिस्कशन पेंडिंग है. उसके पहले के होमवर्क्स का डिस्कशन ऑलमोस्ट हो गया था. ठीक है, थोड़ा बहुत आई थिंक डीपीवी वगैरह का बचा था तो वो हम डिस्कस कर लेंगे. नॉट अ बिग प्रॉब्लम. ऑल राइट. सो लास्ट क्लास में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन कर रहे थे एंड जैसे मैंने आपको बताया था हम लोग एंट्रोपी बेस्ड डिस्कशन करना चाह रहे थे. नाउ व्हाट वर द की हाइलाइट्स ऑफ द डिस्कशन दैट वी डिड. द फर्स्ट हाईलाइट वाज अंडरस्टैंडिंग द ड्रॉबैक एसोसिएटेड विद द फर्स्ट लॉ. दैट first law of thermodynamics is about law of conservation of energy and it does not provide us information about the direction associated with the process, right? According to first law, right, process हो रहा है मतलब energy conserve हो रहा है, right? But energy conserve हो रहा है इसका मतलब process होगा ही सही. That isn't something which first law is able to answer. That is something which is given by the second law of thermodynamics, right? कि energy conserve हो रही है, first law अभी हो रहा है, but तब भी process होगा कि नहीं होगा वो सेकेंड लॉ डिसाइड करता है. एंड सेकेंड लॉ कैसे डिसाइड करता है? सेकेंड लॉ के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस है. हमारे लिए जो रेलेवेंट इंटरप्रिटेशन था विच वी वर डिस्कसिंग प्राइमरीली वाज एंट्रोपी बेस्ड. दैट सेकेंड लॉ सेज कि अगर प्रोसेस फर्स्ट लॉ ओबे कर रहा है अच्छी बात है, देन वो होगा कि नहीं होगा स्पॉन्टेनियसली, दैट इज बाय इटसेल्फ, is governed by the fact whether entropy of the universe is increasing or not. ठीक है. So entropy of universe must increase is the interpretation that we are learning from the second law of thermodynamics. Now what is this entropy? Like what do we mean by entropy? ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर करा था एंड इसमें मैंने आपको दो पर्सपेक्टिव समझाए थे, एक डेफिनेशन और एक कैलकुलेशन, राइट? जो डेफिनेशन के लिए मैंने आपको पर्सपेक्टिव समझाया था एंट्रोपी का, वो मैंने लिया था statistical thermodynamics driven definition. Like we talked about microstates associated with the system. Now what was the representation, what is it that we meant by microstates? तो उसमें मैंने आपको बताया था that it is something which is not very clearly defined, but it can be thought of as, say for example, arrangement of particles inside, orientation of particles inside a system. That these are some ways in which you can understand possible microstates, right? So more such microstates, we say more is the entropy associated with the system, right? So for example, solid, liquid, gas may we say that gases have much more entropy, much more possible microstates as compared to the same substance in liquid form or the same substance in solid form. And in like simpler words, or you can say more trivial words, we represented this in form of this entropy in form of degree of randomness or disorder in the system. Now, how does this definition, ठीक है, calculation पे तो बाद में जाते हैं, how does this definition relate to second law of thermodynamics? Is this something which are you guys able to think of? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. मेरा क्वेश्चन था दैट आपको एंट्रोपी का डेफिनेशन मैंने बताया, ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स ड्रिवन डेफिनेशन जो था, दैट एंट्रोपी
is a measure of the possible microstates associated with a system for a given set of macroscopic parameters. And how to think about microstates, मैंने आपको कुछ examples बताए. ठीक है? Now, how does this relate to the second law of thermodynamics? Any thought process? As a hint, you can think of another interpretation that we thought of entropy, which was related to the degree of randomness or disorder in the system. If क्या बोला अमन, if delta S is greater than 0, then the process is likely to be spontaneous. तो okay, इस स्टेटमेंट को जो आपने बोला है उसको पहले अपन करेक्ट करते हैं. तो अमन ने स्टेटमेंट बोला है if delta S is greater than 0, then the process is likely to be spontaneous. ठीक है? तो सबसे पहले तो डेल्टा एस जो है वो यूनिवर्स का रहेगा. ठीक है? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. ठीक है? नहीं, इट इज यूनिवर्स के लेवल पर जब हम बात करते हैं. ठीक है? सो डेल्टा एस यूनिवर्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0, देन द प्रोसेस इज लाइकली टू बी स्पॉन्टेनियस. ठीक है? बट मैं आपको, ये तो आपने सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट बता दिया मुझे. ठीक है? बट मैं जो समझाने की या समझने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों से वो है दैट ये जो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है और ये जो एंट्रोपी का डेफिनेशन डिस्क्राइब किया, इसके साथ में कुछ कनेक्शन है क्या? दैट why is the second law saying that entropy must increase? Like मुझे entropy समझ में आया. Entropy is a measure of disorder in the system. ठीक है? Entropy in simple words is a measure of disorder in the system. Then why is the second law saying that disorder must increase? Why is it the case that second law is saying that disorder must increase? हाँ, करेक्ट सोच रहे हो अमान. वैसे इट इज नॉट समथिंग जो इस स्टेटमेंट में हम लोग बोलेंगे. ठीक है सर्वेश, ये भी आपका थॉट प्रोसेस चलेगा. ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन बाकी सबके लिए भी. मतलब मैं इनफैक्ट उसी से आज का डिस्कशन स्टार्ट करना चाह रहा था. दैट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड डिसऑर्डर, राइट? तो क्या स्टेटमेंट मैंने बोला? दैट entropy, or you can say disorder of universe must increase. This is the statement of the second law of thermodynamics. हाँ, सही डायरेक्शंस में आप लोग सोच रहे हो, राइट अमान? तो इसका हाँ बिल्कुल सही गौतम. So the simple answer of this lies in probability. The simple answer actually lies in probability. The fact is कि the probability of order versus disorder, when we try to understand the probability of order versus disorder, the probability of disorder is much more than that of order. And that is the natural law which the universe is following. It is moving more and more towards disorder because of the sheer number of ways. Like probability हम लोग कैसे count करते हैं? Probability is desired ways
upon total ways, right? Now the desired ways of disorder versus the desired ways of order, the sheer fact of disorder is much much more, and that is the reason why the universe is moving towards more and more disorder. Like you can take an example of a coin toss. Okay, and coin toss में don't just think about like the simple example of coin toss. इसको थोड़ा सा मतलब जिन लोगों को मैथ्स में थोड़ा इंक्लिनेशन है वो लोग ये एग्जाम्पल लाइक समझ सकते हैं. जैसे यहाँ पर लेट मी एक्चुअली ये पेज भी खोला था. आई एम टेकिंग अ रिस्क. हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको एक पेज दिखाना चाह रहा हूँ, बट डोंट होल्ड मी फॉर इट. ठीक है, लाइक अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो भूल जाना. ठीक है, जस्ट एक ऊपर ऊपर से मैं आइडिया देना चाहता हूँ आपको दैट यहाँ पर एक कॉइन टॉस का एग्जाम्पल से इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. दैट व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम ऑफ 5 कॉइन टॉस. ठीक है, 5 कॉइन टॉस कर रहे हैं हम लोग. अब इसमें नोटिस करना, ईच कॉइन टॉस कैन हैव हेड और टेल्स. ठीक है, नाउ इफ आई लाइक काउंट द केसेस. ठीक है, इनको हम मैथ्स में केसेस बोलते हैं, और इन केसेस को यहां पर मैं मैक्रो स्टेट बोल रहा हूं. ठीक है, आई एम कॉलिंग दीज केसेस एज मैक्रो स्टेट. व्हाट आर दीज केसेस? 5 हेड 0 टेल, 4 हेड एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, दीज आई एम कॉलिंग एज मैक्रो स्टेट्स. नाउ मैक्रो स्टेट वाज समथिंग जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, लाइक जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं उससे हम लोग रिलेट करते हैं. दिस इज द ओवरऑल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, नाउ अब इसकी डेप्थ में जाते हैं. ठीक है, इसकी डेप्थ में जाते हैं हम लोग, माइक्रो स्टेट्स समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, माइक्रो स्टेट्स वुड बी लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस इन विच थिंग्स वुड बी हैपनिंग. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 हेड्स के लिए एक ही माइक्रो स्टेट है कि सबके सब हेड है. 4 हेड्स एक टेल के लिए यू हैव द फॉलोइंग माइक्रो स्टेट्स. ठीक है, मतलब 4 हेड एक टेल है. अब वो कैसे भी आ सकते हैं, लाइक 4 हेड एक टेल, फिर 3 हेड एक टेल एक हेड, इस तरीके से पॉसिबिलिटीज है, राइट? एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, सो ये काउंटिंग है माइक्रो स्टेट्स की. यू कैन डू और सी द काउंट ऑफ माइक्रो स्टेट्स. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ऐसे सम करके लिखा हुआ है. नाउ द थिंग इज, अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे इन टर्म्स ऑफ द पॉसिबिलिटीज. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज मोर लाइकली. ठीक है, what is more likely to happen? Can you see that the number of microstates जहां पर ज्यादा हैं, those are more likely outcomes. ठीक है, टोटल ये 32 तो आप लोगों को पता ही था, 2⁵ वाला, बट उसमें मैं जो माइक्रोस्टेट्स की काउंटिंग कर रहा हूं. ठीक है, विच आर मोर लाइकली. नाउ इसको अब आप ऑर्डर डिसऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करना. ऑर्डर डिसऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे पूछूं, ये वाला माइक्रोस्टेट ऑर्डर्ड है, ये वाला माइक्रोस्टेट ऑर्डर्ड है. ठीक है, ये थोड़े कम ऑर्डर्ड है, हम लोग डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, ये और डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं. तो व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ डिसऑर्डर? वेयर इज इट दैट यू आर सीइंग? करेक्ट, मोर डिसऑर्डर मींस मोर माइक्रोस्टेट्स. तो ये पॉइंट रिलेट हुआ आपको? ऊपर ऊपर से देखो, डोंट गेट इनटू अ लॉट ऑफ मैथ ऑफ इट. नाउ इसी चीज को अगर लाइक लार्जर नंबर सेट्स पे लेते हैं, ठीक है, जैसे इसमें लार्जर नंबर सेट्स पे भी बात करी जा रही है, वेयर देन लाइक टोटल पॉसिबिलिटीज और होती हैं, अगेन द सेम आउटकम कम्स ट्रू, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसऑर्डर comes out to be much more than order. ठीक है,
सो ये सिंपल इसी में नोटिस कर लिया आपने, जो एक छोटा एग्जांपल मैंने दिखाया आपको. नाउ दिस इज समथिंग जिसकी डेप्थ में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन गए थे टू अंडरस्टैंड what is entropy and what is the second law of thermodynamics. However, हम ये जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है उसकी डिटेल में नहीं जाते फॉर कैलकुलेशंस ऑफ एंट्रोपी. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो क्लासिकल इंटरप्रिटेशन था उसके ऊपर फोकस करते हैं जब कैलकुलेशंस की बात आती है. जब कैलकुलेशंस करनी होगी तो ये क्लासिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज ds इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी से कैलकुलेशंस करना चाहेंगे चेंज इन एंट्रोपी की. ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया दैट व्हाट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सेइंग, दैट द यूनिवर्स इज गोइंग टू मूव मोर एंड मोर टुवर्ड्स डिसऑर्डर. ठीक है, नाउ दिस disorder is a, or entropy is a measure of this disorder, right? So we say that the universe moves towards more and more entropy. ठीक है, हाँ. अब उसका कैलकुलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे. हाँ, अलग अलग मीनिंग है. सो ओके, अमान का एक क्वेश्चन है, फिजिक्स में कुछ अलग मतलब है. यस, फिजिक्स में सी इंटरप्रिटेशंस बहुत सारे हैं. मैंने आपको जैसे बताया ना, सेकंड लॉ के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस है. लाइक सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने आपको कल बताया था, आज दिन कल मतलब लास्ट क्लास में, दैट spontaneously by itself heat flows from hot body to cold body. ठीक है, दिस इज वन इंटरप्रिटेशन. अनदर इंटरप्रिटेशन जो आप फिजिक्स में देखते हो, हाँ, वो वर्क एंड हीट के टर्म्स में रहता है, दैट द हीट सप्लाइड कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क. 100% कन्वर्जन नहीं हो सकता. ठीक है, देयर इज सम पार्ट विच इज अनअवेलेबल. हाँ, तो हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला जो इंटरप्रिटेशन है, बट अभी नहीं. अभी हम लोग एंट्रोपी ड्रिवन इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, हाँ, हर्ष मैं आता हूँ उस चीज के ऊपर, वी विल कम टू दैट एग्जांपल. देन विवेक का क्वेश्चन है, एंट्रोपी कॉजेस एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स. वेल, यू कैन से दैट द explanation, or one of the explanation for expansion of universe is the fact that entropy of universe is increasing. ठीक है, दैट इज क्योंकि यूनिवर्स अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है ना, लाइक दैट इज व्हाट आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, यूनिवर्स इज आइसोलेटेड, एंड दिस आइसोलेटेड सिस्टम is continuously increasing its entropy. Now, अब given this understanding, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जब कैलकुलेशन पे आएंगे, ठीक है, एंट्रोपी की कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, तो कैलकुलेशन में हमें ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स का वर्किंग ही देखना है, इन विच दिस विल बी आर स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं मैं आपको कि ये आया कहाँ से, ये हम लोग एज इट इज लेंगे कि किसी ने करी, लाइक जो लोग थे उस टाइम पे, कार्नॉट एंड केल्विन एंड all those scientists who were involved in thermodynamics at that point in time, उन्होंने कैलकुलेशन करा on different reversible thermodynamic processes and found out कि this term is coming out to be dq reversible by t का cyclic integral is coming out to be 0. तो उन्होंने इस टर्म को, इंटीग्रल dq reversible by t को एंट्रोपी नाम दे दिया. ठीक है, बताया कि एक स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंड इसका चेंज इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो यही हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, और अब इसको यूज करते हुए हम लोग आज की क्लास में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कैलकुलेशंस करेंगे. ठीक है, अब कैसे रहेंगी कैलकुलेशंस, तो बिफोर आई
start doing these calculations like delta S system and delta S surrounding की calculations for different types of scenarios, एक जनरल सेट ऑफ रिजल्ट यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं. यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना, दिस इज वेरी क्रूशियल. फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना है यहाँ पर, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस विच इज हाइपोथेटिकल, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस आरंट रियल, दे आर हाइपोथेटिकल. डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग आर इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. कैसे कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, ये कैलकुलेशन से कंक्लूड कर रहे हैं. यहाँ पर नोटिस करना, इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, राइट. तो अगर मैं सिस्टम के लिए लिखूंगा तो यहाँ पर डी एस ऑफ सिस्टम, डी क्यू रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम. और अगर सराउंडिंग के लिए लिखूंगा तो डी एस ऑफ सराउंडिंग, डी क्यू रिवर्सिबल सराउंडिंग एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. अब यहाँ पे नोटिस करना, द फैक्ट इज दैट यूनिवर्स इज आइसोलेटेड, राइट. ये हमारा फर्स्ट लॉ था. तो यानी कि जो डी क्यू सिस्टम प्लस डी क्यू सराउंडिंग होगा वो 0 होगा. जो हीट सिस्टम दे रहा है वो सराउंडिंग ले रहा है, या जो हीट सराउंडिंग दे रहा है वो सिस्टम ले रहा है, राइट. तो यानी कि डी क्यू सिस्टम एंड डी क्यू सराउंडिंग आर इक्वल एंड ऑपोजिट. ऑल्सो क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो यहाँ पर सिस्टम सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. तो यहाँ पर क्या है, T system is equal to temperature of surrounding. Now if I put these things, both these things over here, right, you can see that I am getting dq system and ds system and ds surrounding equal and opposite of each other, like temperature same है और ये dq का sign अलग अलग है. तो I can very well say that their sum is 0 or delta surrounding is equal to minus times delta s system. ठीक है, ये समझ में आया फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस. अच्छा, इरिवर्सिबल में नोटिस करना, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच आर रियल प्रोसेसेस, फॉर ऑल रियल प्रोसेसेस, ठीक है, डेल्टा एस यूनिवर्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स मस्ट इंक्रीज. नाउ इसमें मैं एक सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग डिराइव कर सकता हूँ, ताकि मैं कैलकुलेशंस में, दिस इज मोस्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इजी कैलकुलेशंस, ताकि मेरी कैलकुलेशंस आगे आसान हो जाए. तो यहाँ डेल्टा एस सराउंडिंग का ये फॉर्मूला है, माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग. ये मैं कैसे लेके आया, ये मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ. यहाँ पे नोटिस करना, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, राइट. अब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग कैसा होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग इज वास्ट, राइट, सराउंडिंग इज वास्ट. ये हम लोगों को याद है, विजुअलाइजेशन ही हम लोगों ने करा था इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में. डू यू रिमेंबर दिस सराउंडिंग वास्ट वाला? लाइक अगर आपको किसी सिस्टम को T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर लेके जाना होता था और रिवर्सिबल लेके जाना होता था, तो कैसे उसको एक वास्ट ऑयल बाथ में जो कि T2 टेम्परेचर पे होता था उसमें डिप कर देते थे, राइट. सो सराउंडिंग वाज वास्ट, यानी कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है. सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल के बाहर आने के बाद में ये इंटीग्रल डी क्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी क्यू विल बी क्यू and q surrounding, and q surrounding will be what, because universe is isolated, so you can write q surrounding as minus q system. ठीक है, सो आपका डेल्टा एस यूनिवर्स का एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हो गया माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडेड. ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, डेल्टा एस सराउंडिंग अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, सो नाउ यू ऑल्सो रिमेंबर द कनेक्ट, जो हम लोगों ने पहले बोला था कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को हम लोग ये वर्ड्स क्यों चूज करे थे, व्हाई डिड वी चूज द वर्ड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. तो उसमें कैसा था, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि रिवर्सिबल में एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज अनचेंज्ड, like entropy of universe is reversed, but irreversible processes में entropy of universe cannot be reversed, it just doesn't come back, it just keeps on increasing.
ठीक है, यूनिवर्स के लेवल पर, सिस्टम के लेवल पे नहीं, यूनिवर्स के लेवल पर, सिस्टम प्लस सराउंडिंग कंबाइंड। ठीक है, सो दिस वाज द important points for डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग। अब इन्हीं रिजल्ट्स को हम लोग अप्लाई करते हैं ऑन अंडरस्टैंडिंग द condition of spontaneity using this example of phase transformation। ठीक है, तो ध्यान से नोटिस करना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में, मैं एक बार दोबारा यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, ढंग से समझना, एंट्रोपी के बारे में बताया था। ठीक है, एक तो मैंने आपको एंट्रोपी का डेफिनेशन बताया, ठीक है, राइट, एंड ये डेफिनेशन मैंने क्या यूज करके बताया आपको, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, डेफिनेशन जो था, ठीक है, कैलकुलेशन जो था वो मैंने क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स यूज करके बताया था आपको, जो डेफिनेशन था वो मैंने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से बताया कि इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, एंड उसको फिर मैंने सेकंड लॉ से रिलेट करके बताया आपको, कैसे रिलेट करके बताया, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसऑर्डर is much more than order. That is why second law is saying that entropy of universe must increase। ठीक है, अब आप नोटिस करना, जो एंट्रोपी का कैलकुलेशन था, ठीक है, और यू कैन रादर से दैट चेंज इन एंट्रोपी का जो कैलकुलेशन था वो मैंने आपको क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से बताया, दैट इट इज इक्वल टू इंटीग्रल dq रिवर्सिबल अपॉन t। एंड नोटिस करना, सेकेंड लॉ का जो इंटरप्रिटेशन था, दैट डेल्टा एस यूनिवर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इसको मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, इसको मैं कनेक्ट करके बता देता हूँ कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी? डेल्टा एस यूनिवर्स must be greater than 0. How is this related to the entropy calculations? ठीक है, तो यहां पर मैं एग्जांपल लूंगा मेल्टिंग ऑफ आइस का। ठीक है, नाउ बिफोर आई स्टार्ट डूइंग माय कैलकुलेशंस, आई वुड वांट टू नो योर अंडरस्टैंडिंग of what is spontaneous and what is नॉन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने तीन सिचुएशंस रखी हुई हैं। एक है आइस वाटर का मिक्सचर, ये मैं रूम में लेके आया हूं और रूम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। what will be the spontaneous direction in which the system will go? Will it go from ice to water or will it go from water to ice? Spontaneously by itself, ice to water, right? So यहाँ पर ice to water मैंने जो लिखा हुआ है इक्वेशन, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें फॉरवर्ड इज द स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड इज द स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन, राइट। कैसे पता आपको ये आपकी नॉलेज है। ठीक है, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड। देन अगर यही आइस वाटर का सिस्टम, ठीक है, मैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ATM पर रखूंगा। ठीक है, मान लो हम लोग नॉर्थ पोल पे लेके चले गए, नॉर्थ पोल तो खैर इससे भी ज्यादा ठंडा होगा, तो फिर क्या रहेगा? व्हाट विल बी द स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन? अगर स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन करेक्ट, वाटर टू आइस। ठीक है, वाटर अपने आप फ्रीज हो जाएगा आइस में। तो मैं उसको, अगर इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, इस फॉर्म में अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो व्हाट डज दैट मीन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन? द डायरेक्शन विल बी बैकवर्ड। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज द बैकवर्ड डायरेक्शन, वाटर से आइस, दैट विल बी द स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन। ठीक है, और अगर यही चीज, ठीक है, मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ATM पे रख रहा हूँ, तो व्हाट इज इट दैट योर common knowledge or your understanding of the universe tell you? That at this condition we find that water ice are in equilibrium। ठीक है, they are in equilibrium, there is no spontaneous
डायरेक्शन टू इट. ठीक है, दिस इज योर कॉमन नॉलेज. अब नोटिस करना, यही जो कॉमन नॉलेज है आपकी, ये चीज सेकेंड लॉ कैसे हमें बता रहा है. ठीक है, सेकेंड लॉ और यू कैन से एंट्रोपी कैलकुलेशंस कैसे हमें बता रही है. ठीक है, एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं. नाउ लेट मी गेट इनटू द कैलकुलेशंस एस्पेक्ट. सबसे पहले मैं ये इस फर्स्ट केस के बारे में बात करूंगा कि हमने आइस वाटर का मिक्सचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है. ठीक है, सो यहाँ पे नोटिस करना दैट फॉर फेज चेंज, ठीक है, ये फेज चेंज का ही प्रोसेस हो रहा है. सॉलिड लिक्विड में जा रहा है. ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन. नाउ डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा. डेल्टा एस सिस्टम का जो हमारा क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड डेफिनेशन है वो मैंने यूज कर लिया, इंटीग्रल डी क्यू बाई टी. ठीक है, नाउ यहाँ पर अब आप नोटिस करना टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट है जैसा हमने बताया, तो ये मैं इंटीग्रल के बाहर निकाल लूंगा. फिर ये इंटीग्रल डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू. ठीक है, और ये क्यू कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर पर है. तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो क्यू है उसको हम लोग डेल्टा एच से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, व्हाई डिड आई राइट ओवर हियर डेल्टा एच फ्यूजन, व्हाई, बिकॉज ये जो प्रोसेस मैंने दिखाया है यहाँ पर, जो इक्वेशन मैंने दिखाई है फॉर दिस इक्वेशन, फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये जो लेफ्ट से राइट में जा रहा हूँ उसको मैं क्या बोलूंगा, फ्यूजन बोलूंगा. ठीक है, तो उसका इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच फ्यूजन रहेगा. ठीक है, और यू कैन से मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, नाउ ये जो जस्ट टू यू नो मेक श्योर कि आप लोग और मैं सेम पेज पर है, ये डेल्टा एच फ्यूजन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, व्हाट विल बी द साइन ऑफ डेल्टा एच फ्यूजन. ये हीट अब्सॉर्ब होती है कि रिलीज होती है जब सॉलिड से लिक्विड जा रहा है. अब्सॉर्ब होगा ना हीट, राइट हर्ष. रिलीज थोड़ा ना होगा यार, आइस को तुम मेल्ट कर रहे हो तो हीट रिलीज थोड़ा ना होता है, हीट अब्सॉर्ब होता है ना. कैसी बात कर रहे हो, समझ में आया हर्ष. तो इसका साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर. अच्छा, पॉजिटिव साइन बिकॉज हीट absorbed for fusion. ओके, नाउ ये तो सिस्टम के मैंने कैलकुलेशन की बात करी. अच्छा, सराउंडिंग की कैलकुलेशन के बारे में देखना. सराउंडिंग की कैलकुलेशन कैसी रहेगी, डेल्टा एस सराउंडिंग. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना डेल्टा एस सराउंडिंग, इसका सेम फॉर्मूला रहेगा, इंटीग्रल डी क्यू बाई टी सराउंडिंग. राइट, वापस से टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रल डी क्यू क्यू बन जाएगा, क्यू सराउंडिंग रहेगा. बेसिकली क्यू सराउंडिंग था, और क्यू सराउंडिंग क्या है, ये जैसे मैंने बताया यूनिवर्स आइसोलेटेड है तो क्यू सराउंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस क्यू सिस्टम. एंड क्यू सिस्टम अभी क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस है तो ये माइनस डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी सराउंडिंग आ गया. ठीक है, ये दोनों कैलकुलेशंस में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा. ओके, नाउ अब अगर मैं डेल्टा एस यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ तो वो क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. तो मैं दोनों को एडअप कर लेता हूँ, डेल्टा एस यूनिवर्स इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच एफ कॉमन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से डेल्टा एच एफ कॉमन हो जाएगा, 1/t सिस्टम माइनस 1/t सराउंडिंग आ जाएगा. ठीक है, एंड ये जो डेल्टा एच एफ टर्म है ये मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन करा था कि ये तो पॉजिटिव है. ठीक है, अब नोटिस करना. ठीक है, अब नोटिस करना, अगर विद दिस कैलकुलेशन इन माइंड, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ. ठीक है, इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बोथ आर सेम, तो क्या हो जाएगा,
डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो रहेगा. डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो रहेगा मतलब ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम, राइट. जो मेरा आइस एंड वाटर है वो आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे. ठीक है. हाँ रुक जाओ एक मिनट अमन, लेट मी कंप्लीट दिस. अगर जो मेरा पहला सिचुएशन था, ऊपर वाला जो मैंने बताया था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है सराउंडिंग का टेम्परेचर, राइट, और वो सिस्टम के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो फिर क्या हो रहा है, डेल्टा एस यूनिवर्स ये कैसा आ जाएगा, अगर टी सराउंडिंग, यहाँ पे आप नोटिस करो ये टी सराउंडिंग जो है ये टी सिस्टम से ज्यादा रहेगा, मतलब 1/273 माइनस 1/298, ये टर्म पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव रहेगी, ये टर्म पॉजिटिव रहेगी, और ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आया, ग्रेटर देन जीरो. सो डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो आया, एंड व्हाट डज दैट मीन, that the process is spontaneous in forward direction. मतलब ice melts into water. ठीक है, that is the spontaneous direction. अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड था और ये सिस्टम का 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, इफ दिस इज द केस, राइट, देन 1/273 माइनस 1/263, लाइक ये जो 1/t सिस्टम माइनस 1/t सराउंडिंग है, राइट, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव, राइट. तो डेल्टा एस यूनिवर्स नेगेटिव हो गया. डेल्टा एस यूनिवर्स नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, दैट सेकंड लॉ कह रहा है कि नहीं ये तो स्पॉन्टेनियस रहेगा ही नहीं, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. नॉन स्पॉन्टेनियस अगर फॉरवर्ड में नॉन स्पॉन्टेनियस है तो मतलब बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि लाइक इफ यू स्विच द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन तो उसका एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब चेंज जाते हैं ना, स्टेट फंक्शंस है ना ये. तो यानी कि बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस हो गया. बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज वाटर फ्रीजेस इनटू आइस. हाँ करेक्ट, सही है, करेक्ट अमान. समझ में आया that how this second law calculation is helping us understand what is the spontaneous direction. ठीक है, is this clear with everyone? हाँ कुछ डाउट है तो पूछो. ऑल राइट. क्या चीज अमान, वाटर टू आइस भी होता है, मतलब वाटर टू आइस भी होता है, बट वो हाँ तो ये है ना वाटर टू आइस, ये वाटर टू आइस तो लिखा है यहाँ पे, जो मतलब जब सराउंडिंग -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो स्पॉन्टेनियसली वाटर से आइस में जा रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने अभी क्या करा, मैं एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ. मैंने एक तो आपकी पहले इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग चेक करी कि आपको वाटर और आइस के बारे में पता है कि नहीं पता है, क्योंकि वाटर और आइस का लाइक ये मेल्टिंग पॉइंट सबको पता रहता है, तो आप सब ये इंट्यूटिव आंसर मुझे दे पाए. ठीक है. आफ्टर दिस इंट्यूटिव आंसर, आफ्टर दिस कॉमन अंडरस्टैंडिंग, आई शोड यू हाउ दीज आंसर्स आर गिवन बाय second law of thermodynamics. When we do the entropy change calculations, we calculate the entropy change of the universe, that is entropy of system plus entropy of surrounding, and it gives us the answer to what will be the spontaneous direction. ठीक है, and how it matches with our
ऑब्जर्व्ड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नाउ गिवन दिस, अब हम लोग किसी भी प्रोसेस के लिए सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं एंड उसकी स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ, किसी भी प्रोसेस के लिए अगर अब डेल्टा एस यूनिवर्स, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, डेल्टा एस यूनिवर्स नेगेटिव आ गया तो मतलब वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो अपने आप नहीं होगा। ठीक है, किसी भी प्रोसेस के लिए अगर डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आ गया मतलब वो अपने आप होगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम लोग रिएक्शंस को जज कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, वो सेकेंड लॉ के हिसाब से पॉसिबल है कि नहीं है। तो सेकेंड लॉ इज ऑफ गुड इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री एज वेल। ठीक है, फिजिक्स के इंटरप्रिटेशन तो होते ही हैं विच आर रिलेटेड टू एफिशिएंसी एंड इंजन एंड ऑल ऑफ दैट। केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है वो हमारे लिए सेकेंड लॉ का क्या रहेगा, दैट डेल्टा एस यूनिवर्स अगर किसी रिएक्शन का पॉजिटिव है तो मतलब वो रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हो सकता है, इट इज एन अलाउड रिएक्शन। अगर उस रिएक्शन का डेल्टा एस लेस देन जीरो है, डेल्टा एस यूनिवर्स, ठीक है, देन इट इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज नॉट समथिंग विच इज अलाउड बाय द रिएक्शन बाय द यूनिवर्स। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया। अब बिफोर वी स्टार्ट अप्लाइंग दिस नॉलेज टू रिएक्शंस, हम लोग धीरे धीरे नॉलेज बिल्ड करेंगे, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लॉ में करा था। फर्स्ट लॉ को हमने पहले आइडियल गैसेस पर, सॉलिड्स, लिक्विड्स पर अप्लाई करा था, उसके बाद फिर हमने रिएक्शंस पे अप्लाई करा था। तो उसी तरीके से हम लोग अपना एक लर्निंग कर्व बिल्ड करेंगे, जहां पर सेकेंड लॉ पहले मैं आइडियल गैसेस पे अप्लाई करूंगा, फिर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पे अप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद में रिएक्शंस पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोटिस करना, सबसे पहले हम लोग सेकेंड लॉ की कैलकुलेशंस देख लेते हैं फॉर आइडियल गैसेस। नाउ सेकेंड लॉ की कैलकुलेशंस फॉर आइडियल गैसेस का पहले मैं आपको रिजल्ट लिखा देता हूँ। ठीक है, द रिजल्ट इज समथिंग विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू रिमेंबर, दिस विल हेल्प यू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशंस अ लॉट। ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, वी आर गोइंग फ्रॉम सम P1 V1 T1 to some P2 V2 T2. ठीक है, this is our ideal gas going from some P1 V1 T1 to P2 V2 T2. So what is the general result, what is the change in entropy that we get? तो ये रिजल्ट है। ठीक है, प्रूफ मैं करा देता हूँ थोड़ी देर में। डेल्टा S will be equal to NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1। ठीक है, और एनसीपी, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना है सीपी है यहाँ पर, लॉन T2 by T1 प्लस एनआर लॉन P1 by P2। ठीक है, P1 by P2 रहेगा। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स केयरलेस मिस्टेक करके यहाँ पे V2 by V1 लिखा है तो यहाँ पे P2 by P1 लिख देते हैं, बट यहाँ पर P1 by P2 रहता है। ठीक है, कैसे आया ये रिजल्ट, अब एक बार आप नोटिस करना, इसका प्रूफ मैं आपको करा देता हूँ, ऑल्दो कोई प्रूफ आपसे पूछेगा नहीं, बट इसका सिंपल ही प्रूफ है। ठीक है, ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, जस्ट कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करते रहना है। ठीक है, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, ds is equal to integral dq reversible by t, right? This is our starting point of change in entropy. Now what is dq reversible? रुक जाओ अमन, तुम गलत बोल रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। so ds is equal to integral dq reversible by t। dq reversible क्या रहेगा, du minus dw। ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, राइट? नाउ आइडियल गैसेस के लिए व्हाट वाज du, इट वाज ncv dt, एंड dw क्या था, dw क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल dv। एंड आइडियल गैसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए पी एक्सटर्नल और पी बराबर थे, है ना? तो वो मैंने पी से यहाँ पे रिप्लेस कर लिया।
नाउ अब मैंने इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया, ये एक एनसीवी अपॉन टी डी टी रह गया और एक ये पी बाई टी डी वी रह गया। अब पी बाई टी डी वी को मैं पी बाई टी को एन आर बाई वी लिख सकता हूँ, राइट, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पी बाई टी इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी। अब मैं इनका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, ये 1 अपॉन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉन टी, एंड 1 अपॉन वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉन वी, राइट। एंड मैंने यहाँ पर उनकी लिमिट्स डाल दी T1 से T2, ठीक है। तो ये बन गया डेल्टा एस एन सी वी लॉन T2 बाई T1 प्लस एन आर लॉन V2 बाई V1, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट था, ये मैंने जो यहाँ पर ऊपर वाला रिजल्ट दिखाया था आपको, ठीक है, दैट दिस इज द डेल्टा एस का रिजल्ट। अच्छा, अब इसके नीचे वाला रिजल्ट कैसे आएगा, वो थोड़ी सी मैथ्स करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं वो मैथ्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पर सीवी को लिखना सीपी माइनस आर, ठीक है, सीवी को लिखना सीपी माइनस आर, लेके आर को इस तरफ लेके चले जाना। एंड ऑल्सो आइडियल गैस इक्वेशन से आपको पता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, तो इन दोनों को यूज करना, ये पहले वाले इसमें रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट करना, राइट, इस वाले में सब्स्टिट्यूट करके इन रिजल्ट्स को थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना और ये रिजल्ट आ जाएगा, एन सी पी लॉन T2 बाई T1 प्लस एन आर लॉन P1 बाई P2, ठीक है। मैं वो स्टेप्स नहीं दिखा रहा, वो आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। ऑल राइट, नाउ अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नोटिस करना, द अबव रिजल्ट होल्ड्स ट्रू फॉर irreversible process of ideal gas also, ठीक है। अगर मैं P1 V1 T1 से P2 V2 T2 जा रहा हूं, रिवर्सिबली जाऊं कि इरिवर्सिबली जाऊं, ठीक है, मेरा आंसर डेल्टा एस का सेम ही रहना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, इट डजेंट मैटर मैं ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जा रहा हूं, कैसे भी जाऊं, my change in entropy is going to be the same value, ठीक है। तो मैंने डेरिवेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक रिवर्सिबल प्रोसेस यूज किया था, बट एक बार जब रिजल्ट डिराइव कर लिया तो नाउ आई डोंट नीड टू बी स्टक टू द कॉन्सेप्ट कि रिवर्सिबल के लिए ही ये रिजल्ट है, द रिजल्ट इज एप्लीकेबल फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस ऑफ एन आइडियल गैस आल्सो। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? हाँ, क्या नहीं समझा अमान, बताओ। क्योंकि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन ना। क्या प्रूफ में देखना है? हम्म ठीक है, ये रिजल्ट क्लियर है? हाँ, कृष्णा का क्या डाउट है? सर एंट्रोपी होगी तो रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एंट्रोपी, क्या तुम यार ढंग से लिख तो लो, मतलब मैं कैसे पढूं इसको, एंट्रोपी तो रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे हो, तुम पहले थोड़ा उसको ढंग से लिखो। फिर क्या कह रहे हो अमन, बट पी एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू एनआरटी बाई वी इन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। हाँ तो ठीक है ना आपका पॉइंट, देखो मैंने डेरिवेशन के लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं यूज करा, मैंने डेरिवेशन के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस ही यूज करा है, ठीक है। डेरिवेशन के लिए मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस ही यूज करा है, एंड उस रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बेसिस पर मैंने फॉर्मूला निकाल लिया मेरा, ठीक है। एंड कैन यू सी
दैट ये जो फॉर्मूला है वो किस पे डिपेंडेंट आ रहा है, जस्ट दीज प्रॉपर्टीज T1 T2 P1 P2, राइट। तो अगर मैं सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट जा रहा हूं तो मेरा, बिकॉज एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, तो जो वैल्यू रहेगा डेल्टा एस का, जो चेंज है वो तो सेम ही रहेगा ना। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट फंक्शन। ठीक है, हाँ, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन पी एक्सटर्नल, इट विल नॉट। ठीक है, देन कृष्णा क्या कह रहे हो तुम, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होगी क्या, इसका मतलब ऐसा कहाँ लिखा है, मतलब ये तुमने कैसे इंटरप्रेट कर लिया कि एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। ये तो मैंने कहीं ना बताया है ना पढ़ाया है, तुमने अपने हिसाब से कहाँ से ये चीज जज कर ली। यूनिवर्स की डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो होगा, यूनिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। ये तो मैं आइडियल गैस की कर रहा हूँ ना, आइडियल गैस तो अपना सिस्टम है ना अभी। ठीक है, ये रहता है कई बार स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। ठीक है, जैसे मैं क्विक क्विक कैलकुलेशन कराता हूँ आपसे, एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, और फिर उसके बाद में मैं डिटेल्ड एनालिसिस भी करूँगा आप लोगों के साथ। ओके, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करो, व्हाट विल बी द एंट्रोपी चेंज। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। हम्म, ठीक है, इसलिए जब भी देखो, यहाँ पे आप ध्यान देखना कृष्णा, मैं जब भी एंट्रोपी की कैलकुलेशंस कर रहा हूँ ना, ठीक है, थ्योरी में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तब मैं एंट्रोपी चेंज सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग दोनों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना, जब ये सेकंड लॉ कैलकुलेशंस ऑन आइडियल गैस के बारे में मैंने बात करी आपसे, तो ये मैंने यहाँ पे सिस्टम लिखा बड़ा बड़ा कि सिस्टम का कर रहे हैं कैलकुलेशन। एक बार सिस्टम का समझ में आ गया तो उसके बाद मैं सराउंडिंग का भी कराने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, बिफोर आई गो इनटू सराउंडिंग का डिस्कशन, ये एक सिस्टम का क्वेश्चन आंसर कर लो। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कितना होगा यहाँ पे बताओ जरा। फटाफट फटाफट बताओ, क्या आंसर रहेगा। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है जो ऊपर सीखा है। ये फॉर्मूला था जो हमने ऊपर सीखा है। हाँ, राइट अमन, राइट सर्वेश। नहीं नहीं, डी रहेगा ना, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, मतलब मैं फॉर्मूला में फॉर्मूला डालने में भी तुम लोगों को इतना गलती कैसे होता है यार, इतना टैलेंट कहाँ से लेके आते हो तुम। मतलब यहाँ पर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, ठीक है, इट इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, राइट। सो ये V1 जो है वो 2V है, और जो V फाइनल है वो V है, एंड साइमल्टेनियसली हीटेड टू ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर।
T1 जो है वो TA और T2 जो है वो 2TA। ठीक है, 1 मोल के बारे में बात करी जा रही है। अब फॉर्मूला लगाना है डेल्टा एस, ठीक है, सिस्टम, ठीक है, जो मेरा आइडल गैस है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। NCV लॉन T2/T1 प्लस NR लॉन V2/V1, राइट। तो ये हो जाएगा N मतलब मोल्स तो इसके 1 है, एंड यहाँ पे T2/T1 हो जाएगा 2, एंड 1 × R × लॉन V2/V1 हो जाएगा 1/2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, CV माइनस R टाइम्स लॉन 2। तो ये डी ऑप्शन से मैच कर गया ना, समझ में आया? हृदय, संयम, लॉन 1/2 विल बी माइनस लॉन 2। मैं मतलब स्क्रीन में घुस के मारूंगा यार किसी को। इतना इरिटेट मत करो तुम मुझे। मतलब लॉन हाफ को माइनस लॉन 2 क्यों लिखा? अभी फाउंडेशन का कोर्स शुरू हो रहा होगा कहीं ना कहीं पे, वो ज्वाइन कर लो। नॉनसेंस। अच्छा, अभी डेल्टा इज सराउंडिंग के बारे में नोटिस करो, ठीक है। सराउंडिंग की कैलकुलेशंस भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। फर्स्ट लॉ में तो क्या है, फर्स्ट लॉ में भी नेवर बॉदर्ड अबाउट सराउंडिंग की कैलकुलेशंस, बट सेकंड लॉ में हम लोग सराउंडिंग की कैलकुलेशंस से भी कंसर्न रहेंगे, ऐसा नहीं है कि इनको इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर अब आप नोटिस करना, लुकिंग एट डेल्टा एस सराउंडिंग, इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस कैसा रहता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर निकाला था, माइनस डेल्टा सिस्टम रहेगा, और इरिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा तो इट विल बी माइनस क्यू सिस्टम बाय टी सराउंडिंग, ठीक है। ये जस्ट हमने अभी ऊपर आज के मॉर्निंग के डिस्कशन में सुबह सुबह डिराइव कराई था। नाउ गिवन दीज पॉइंट्स, let me now elaborate my discussions on, or let me elaborate the calculations for ideal gases for different processes, ठीक है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लॉ में टेबल बनाया था, वैसे ही सेकंड लॉ में टेबल बना रहा हूँ। आइडियल गैस के लिए मैं डिफरेंट प्रोसेसेस करने वाला हूँ अभी, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, एंड उनमें मैं आपके साथ में यहाँ पर डेल्टा एस के सिस्टम के एंड डेल्टा एस सराउंडिंग के कैलकुलेशंस करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे की फॉर्मूलाज रहेंगे, इनके ऊपर बेस्ड बाकी रिजल्ट्स आपको खुद से लिखने रहेंगे। तो लेट मी गिव मी जस्ट 1 मिनट, लेट मी रब द टेबल, ठीक है। लेट मी रिमूव द ऑलरेडी रिटन आंसर्स, एंड फिर आप लोग वो टेबल फिल करने में मेरी हेल्प करना, ठीक है। ऑल राइट, हाँ। तो अब क्या रहेगा यहाँ पर, एक एक करके बताते जाओ। आइसोकोरिक, हम लोग किसी P1V T1 से P2V T2 जा रहे हैं। अगर रिवर्सिबल जाएंगे तो डेल्टा सिस्टम में क्या लिखूंगा, हम्म, रिवर्सिबल में जा रहे हैं, हाँ करेक्ट अमान। ये रहेगा NCV लॉन T2/T1,
T1। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये V2 by V1 वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, ln 1 जीरो होता है ना। What about delta S surrounding? What will be delta S surrounding for reversible processes? Correct. It will be minus delta S system. तो minus NCV ln T2 by T1. ठीक है. What about irreversible processes? Irreversible processes में कैसा रहेगा कैलकुलेशन? सेम सिस्टम के लिए NCV ln T2 by T1. ठीक है, बी इट रिवर्सिबल और रिवर्सिबल. व्हाट अबाउट सराउंडिंग के लिए? सराउंडिंग के लिए इन केस ऑफ इरिवर्सिबल मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. करेक्ट. माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग. एंड व्हाट वाज माइनस क्यू सिस्टम? इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या रहता है क्यू? आइसोकोरिक. आइसोकोरिक प्रोसेस में, हाँ मन करेक्ट है. एनसीवी डेल्टा टी, राइट. किसका डेल्टा टी? ध्यान से नोटिस करना, ये सिस्टम का रहेगा और ये डिनोमिनेटर में जो टेम्परेचर था वो किसका है? सराउंडिंग का. ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला समझ में आया, क्लियर है. अच्छा, अब अगला वाला बताओ, आइसोबेरिक में क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द रिजल्ट इन द नेक्स्ट वन? नहीं नहीं, एनसीपी रहेगा ना अब यहाँ पर. ये देखो, ये वाला अब मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा. ठीक है, ताकि ये एनआर लॉन P1 बाई P2 वाला टर्म चला जाए. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? दिस विल बी एनसीपी लॉन T2 बाई T1. ठीक है, ऑल्दो अगर आप मान लो कि ये फॉर्मूला भूल जाते हो तो यू कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन टू योर बेसिक्स. अगर आप ये वाला फॉर्मूला भूल जाते हो तो यू कैन ऑलवेज फॉल ऑन टू द बेसिक्स. व्हाट वर द बेसिक्स? द बेसिक्स वर ds इज इक्वल टू dq बाई टी, राइट. अब आइसोबेरिक में dq क्या होगा? ncp dt. तो ये ncp ln T2 बाई T1 आ जाएगा. ठीक है, you could have done that, but I would recommend remembering this formula. ठीक है, what about surrounding? Minus ncp ln T2 by T1, correct. अब irreversible में क्या रहेगा सिस्टम का? The same thing, ncp ln T2 by T1. ठीक है, what about this one? It will be minus q system upon T surrounding, and it will be minus ncp delta T, Shan. T2 by T1 नहीं, T2 minus T1 delta T upon T surrounding. ठीक है, समझ में आया? चलो गुड. आइसोथर्मल में बता दो. अरे लॉन क्यों खा गए?
ठीक है, करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, सीपी वगैरह नहीं रहेगा ना। ये देखो ना यहाँ पर, ये सीपी या सीवी वाला टर्म गायब हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल में ना। तो क्या रहेगा यहाँ पर, एन आर लॉन V2/V1, या फिर एन आर लॉन P1/P2। ठीक है, व्हाट अबाउट द सराउंडिंग, इट विल बी माइनस ऑफ इट, माइनस एन आर लॉन V2/V1, and irreversible maybe it will be the same, nr ln V2/V1, and what about here, it will be minus q system upon t surrounding, right? and नहीं, जीरो नहीं होगा ना, क्यू जीरो थोड़ा होता है आइसोथर्मल में, ये तो एडियाबैटिक थोड़ा है प्रोसेस बाबा। नहीं अमन, ये भी गड़बड़ कर दिया आपने। हम्म, यहाँ पे क्यू क्या रहेगा, इसका हीट कैपेसिटी थोड़ा डिफाइंड होता है आइसोथर्मल का, सीवीसीपी थोड़ा लिख सकते हो। सर्वेश इरिवर्सिबल, क्यू सिस्टम इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चल रहा है ये। फर्स्ट लॉ यूज करना पड़ेगा। करेक्ट, इरिवर्सिबल करना है कृष्णा, आप रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला नहीं लिखोगे यहाँ पर। समझ में आया बाकी जनता को। हम्म, राइट अमान, क्लियर है ये। अच्छा, अब अरे क्योंकि ये जैसे आइसो कोरिक में तो आपको पता था दैट हीट कैपेसिटी सीवी होता है, आइसोबेरिक में हीट कैपेसिटी सीपी होता है, आपको आइसोथर्मल का हीट कैपेसिटी तो नॉट डिफाइंड होता है ना, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड बोलते हैं ना आइसोथर्मल में। तो फिर मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता था, इसके लिए मुझे फर्स्ट लॉ का यूज करना पड़ा। ठीक है, अच्छा अब नोटिस करना, एडियाबैटिक। ठीक है, एडियाबैटिक इज समथिंग विच इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द अदर्स। ठीक है, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट लर्निंग हम लोगों ने फर्स्ट लॉ के टाइम पे भी समझी थी। व्हाट वाज दैट लर्निंग, जो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ के टाइम पे समझी थी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेसेस। वी हैड अंडरस्टूड समथिंग लाइक, ध्यान से नोटिस करना, नहीं 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 नहीं, ये वाला पार्ट कि रिवर्सिबल पाथ अलग होता है और इरिवर्सिबल पाथ अलग होता है। ठीक है, ये ऊपर वाले प्रोसेस में एप्लीकेबल नहीं था, ऊपर वाले में तो कैसा था, हम लोग इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली, इनिशियल से फाइनल जा सकते हैं रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली, इनिशियल से फाइनल जा सकते हैं रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली। बट एडियाबैटिक में अगर हम इनिशियल से रिवर्सिबली जा रहे हैं फाइनल, तो फिर इरिवर्सिबली नहीं जा सकते। ठीक है, वी विल लैंड अप एट सम अदर फाइनल स्टेट, राइट? याद हो तो मैंने कैसे बताया था, यहाँ पे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करो सबके सब, यहाँ पे फोकस करो दैट अगर मैं P1 V1 T1 से P2 V2 T2 जा रहा हूँ एडियाबैटिक रिवर्सिबल मैनर में,
तो मैं इरिवर्सिबली नहीं जा सकता, ठीक है। इफ आई ट्राई टू टेक से V2 सेम ले लेता हूं मैं, ठीक है। इफ आई ट्राई, ठीक है, मेरा चॉइस है कीपिंग V2 सेम डेलिबरेटली, ये मेरा चॉइस है, ऐसा कंपल्शन नहीं है, ये मेरी चॉइस थी। अगर मैं चाहूं कि मैं P1 V1 T1 से V2 तो जाऊं ही सही, तो फिर आई विल लैंड अप एट सम P2 डैश एंड T2 डैश, ठीक है। बिकॉज ये हम लोगों ने नोटिस किया था दैट रिवर्सिबल एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशंस आर अलग अलग, दे डोंट मैच। यहाँ पे पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक रिवर्सिबल में, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में पीवी की पावर गामा कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। सो गिवन दिस नॉलेज, गिवन दिस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अब यहां पर नोटिस करना मेरा जो फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, वो मैं अप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले रिवर्सिबल के ऊपर फोकस करो, ठीक है। सबसे पहले फोकस ऑन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में एन सी वी लॉन T2/T1 प्लस NR लॉन V2/V1, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला लग गया। नाउ ये जीरो के बराबर क्यों होगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाई विल बी दिस इक्वल टू जीरो? कैन एनीवन प्रूव दिस फॉर मी? करेक्ट। तो इसमें थोड़ा सा मैथ्स करके देखो ना, ये जो CV है, CV को मैं R अपॉन गामा माइनस वन लिख सकता हूँ, ठीक है। CV को मैं R अपॉन गामा माइनस वन लिख सकता हूँ। कहाँ से आया था ये? शायद आप लोगों को याद नहीं है, बट CP इज इक्वल टू CV प्लस R एंड CP/CV इज गामा। तो इन दोनों से यू कैन राइट CV, हाँ ये मैंने पहले भी डिराइव करा हुआ है, यू कैन राइट CV एज R अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन में से ये कॉमन ले लो, NR अपॉन गामा माइनस वन, NR अपॉन गामा माइनस वन कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर ही गामा माइनस वन हो जाएगा, है ना। अच्छा, इस गामा माइनस वन को मैं पावर में चढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं पावर में चढ़ा देता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ, और इन दोनों लॉन्स को मैं कंबाइन कर सकता हूँ। इन दोनों लॉन को कंबाइन करूंगा तो क्या आ जाएगा? T2 V2 की पावर गामा माइनस वन अपॉन T1 V1 की पावर गामा माइनस वन, राइट। एंड क्योंकि आपको ये पता है एडियाबैटिक रिवर्सिबल में ये इक्वेशन होल्ड करती है ना, PV की पावर गामा कांस्टेंट या फिर TV की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट, याद है कि नहीं याद है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लॉन वन हो जाएगा, लॉन वन क्या होता है? जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा, करेक्ट। और आप ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते थे दैट DS, ठीक है, नहीं नहीं इसमें ध्यान से सोचना अमन, ऐसा नहीं, DS वॉज DQ रिवर्सिबल अपॉन T, ठीक है। एंड क्योंकि रिवर्सिबल का ही DQ जीरो है, दैट इज व्हाई दिस इज जीरो, ठीक है। ऑल राइट, तो अब यूनिवर्स का भी आपको समझ में आ जाएगा। यूनिवर्स का डेल्टा एस क्या होता है? माइनस ऑफ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स इज माइनस डेल्टा एस सिस्टम, तो वो भी जीरो आ गया। अच्छा, अब इरिवर्सिबल के लिए नोटिस करना, दिस इज वेयर द कैच इज, ठीक है। यहाँ पे अब आप नोटिस करना, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू फॉर यू टू ग्रास्प। अब यहाँ पर NCV लॉन T2/T1 की जगह मैं लिखूंगा T2 डैश बाई T1, राइट। व्हाई डिड आई राइट T2 डैश ओवर हियर? अभी एक्सप्लेन किया था ना थोड़ी देर पहले कि अगर मैं P1 V1 T1 से V2 जा रहा हूं तो आई कांट गो टू T2, आई विल बी गोइंग टू सम T2 डैश, ठीक है, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम T2। सो ये NCV लॉन
T2 dash by T1 plus nr ln V2 by V1, ऐसा रहेगा. अब द फैक्ट इज कि इट इज नॉट गोइंग टू ओबे द प्रोसेस इक्वेशन. ठीक है, पीवी रेस टू द पावर ऑफ गामा को ये ओबे नहीं करता है. पीवी रेस टू, तो यहाँ पे इनको मैं कंबाइन भी कर दूंगा तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे. ठीक है, ये एक्सप्रेशन कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, दैट इज वन इंपॉर्टेंट लर्निंग. नाउ द अदर इंपॉर्टेंट लर्निंग इज दैट ये ग्रेटर देन जीरो होगा. ठीक है, ये ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा? कैन एनीवन टेल? Why this will be greater than zero? Why will this be greater? नहीं हरिओम, मतलब थोड़ा और अच्छे एक्सप्लेन करो. नहीं सही है. यहाँ पे CV कोफिशिएंट है, यहाँ पे R कोफिशिएंट है. अच्छा, ये ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा मैं बताता हूँ. क्योंकि आप यहाँ पे फोकस करो, डेल्टा एस सराउंडिंग जो रहेगा वो जीरो रहेगा. ठीक है, डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो जीरो रहेगा. डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? माइनस क्यू सिस्टम बाई टी सराउंडिंग. और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यू सिस्टम ग्रेटर देन जीरो है. And by second law of thermodynamics, delta S universe has to be greater than zero, right? And delta S universe क्या होता है? Delta S system plus delta S surrounding. Right? और डेल्टा एस सराउंडिंग अगर जीरो है तो यानी कि डेल्टा एस सिस्टम हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो. समझ में आया? नाउ इससे अब एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा आपके सामने, जो कि पहली बार जो कि मतलब पहले काफी सारे बार एग्जाम से पूछा जा चुका है. जेई मेंस में, जेई एडवांस में मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है, विच इज T2 डैश और T2 में. ठीक है, व्हाट वाज T2 डैश? T2 डैश वाज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड T2 क्या था? फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबैटिक रिवर्सिबल. तो इससे अब आप प्रूव कर सकते हो दैट T2 डैश कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन T2. कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये टर्म तो जीरो के बराबर है और ये टर्म ग्रेटर देन जीरो है. इन दोनों में ये nr ln V2 by V1 तो सेम ही है. ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ जाएगा? दैट T2 डैश विल बी ग्रेटर देन T2. क्लियर है? मतलब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो ना आप, सेकंड माइनस वन कर दो, लाइक दिस माइनस दिस, तो ये ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा. समझ में आ जाएगा आपको T2 डैश इज ग्रेटर देन T2. नाउ इससे बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, लेट मी रब द आंसर. नाउ कैन यू कंप्लीट दिस सेंटेंस? कैन यू कंप्लीट द फिलअप्स ओवर हेयर? ये वाला और ये वाला. ये पहला वाला तो आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दैट एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस कूल डाउन करता है. एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस कूल डाउन क्यों करता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस कूल डाउन क्यों करता है?
ये फर्स्ट लॉ से याद आएगा ना, क्यू जीरो है, वर्क नेगेटिव है, राइट, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन मतलब वर्क नेगेटिव, इसका मतलब डेल्टा यू नेगेटिव, डेल्टा यू नेगेटिव मतलब डेल्टा टी नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है ना। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कूल डाउन हो रहा है। अब मैं पूछ रहा हूँ दैट कहाँ पे ज्यादा कूल डाउन करता है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल में कि एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में? ये फिलअप्स करो यहाँ पे, फिल इट कूल्स डाउन वेयर मोर। नहीं, गड़बड़ कर दिया, सबने गड़बड़ कर दिया। ईशान ने सही दिया है, संयम, अमान, कृष्णा, हर्ष, सर्वेश, हृदय गलत दिया है। हाँ, महिमा ने भी करेक्ट दिया है। हाँ, अब ठीक करा है तुमने अमान। देखो ना यहाँ पर, ये डायग्राम से समझ में आएगा ना तुमको। ये मेरा इनिशियल टेम्परेचर है T1, ठीक है, दिस इज माई इनिशियल टेम्परेचर। अब एक्सपेंशन करने पर गैस कूल डाउन हो रही है, यानी कि टेम्परेचर नीचे जा रहा है, ठीक है। अब बिकॉज यू नो दिस दैट एडियाबैटिक इरिवर्सिबल का टेम्परेचर एडियाबैटिक रिवर्सिबल से ज्यादा होगा, तो ये T2 डैश हो गया और ये T2 हो गया, ठीक है, फाइनल ऑफ इरिवर्सिबल एंड फाइनल ऑफ रिवर्सिबल। तो अब आप चेंज देखोगे तो किसमें चेंज ज्यादा दिख रहा है, रिवर्सिबल में ज्यादा चेंज हो रहा है ना। तो it cools down more in case of adiabatic reversible as compared to adiabatic irreversible. समझ में आया? ठीक है, आप इससे वर्क के बारे में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। नहीं नहीं, रेट का कोई आंसर नहीं है, विद थर्मोडायनेमिक्स डजंट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम्स, अमन, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। रेट का कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। नो, ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है? एक और स्टेटमेंट ट्राई करोगे? ठीक है, तो मैं एक बार वापस से आंसर रब कर देता हूँ। एक मिनट दो मुझे। हम्म, बताओ इसका क्या आंसर रहेगा, यहाँ पे फिलअप्स क्या रहेंगे? और एक बार में सही बताना, ठीक है, टाइम ले लो, जल्दबाजी नहीं है। थिंक, राइट डाउन प्रॉपरली एंड देन आंसर। ठीक है सर्वेश,
अमान, ईशान, आप लोगों का करेक्ट है। हाँ, संयम, हर्ष, ठीक है। राइट, तो ये हीट अप तो समझ में आ गया होगा सबको, कि जब एडियाबैटिक कंप्रेशन करते हैं तो गैस हीट अप होता है, राइट, बाय द सेम सेट ऑफ लॉजिक जो मैंने ऊपर बताया था। ठीक है। अब यहाँ पे आप वापस से टेम्परेचर का स्केल बनाओगे। ये इनिशियल है, और इनिशियल के बाद में गैस हीट अप हो रहा है, राइट। और फाइनल टेम्परेचर आपको ये पता है कि इरिवर्सिबल का रिवर्सिबल से ज्यादा होता है, तो ये T2 डैश रहेगा, ये T2 रहेगा, तो चेंज जो है वो किस में ज्यादा मिल रहा है, इस बार इरिवर्सिबल में, राइट। तो हाँ, करेक्ट कृष्णा, it will be heating up more in irreversible as compared to adiabatic reversible। समझ में आया? क्लियर है? ऑल राइट, चलो ठीक है, फिर इसके आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। लाइक मुझे ग्राफ्स वगैरह भी कराने थे, बट ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो वी विल पिक इट अप इन द नेक्स्ट क्लास। मैं आपको एटलीस्ट कुछ कैलकुलेशंस दे सकता हूँ बेस्ड ऑन दिस सेकंड लॉ, स्पेशली गैसेस के लिए, तो आप वो क्वेश्चंस ट्राई करना जो मैं आपके साथ में आज होमवर्क में शेयर करूँगा। ठीक है, एंड मेक श्योर पुराना थर्मोकेमिस्ट्री का होमवर्क सब टाइम पे कंप्लीट हो रहा है। चलो, ऑल राइट देन। हाँ, थैंक यू गाइस। अच्छा, मैंने डीपीपी सेंड ही नहीं करे क्या, 49, 50, 51? ओ, एल हो गया है, तो ठीक है, भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। चलो, बाय बाय।